Dear children, we have already read about the chapter Every Drop Counts. Today I am going to tell you more about the Every Drop Counts chapter, in which you have seen the through the eyes of Al-Biruni, and the question given under think and find out. You have already read about these things, and I have told you that Al-Biruni came to India from Uzbekistan, right? And he observed and noted down the details of that he saw in India, and he wrote especially about those things that he found very different from his own country. In his own country, there was nothing management of the water, and here he had seen the different management of water, and the water management is done in the form of pond, rivers, lakes, etc. He has seen everything for the possible to keep safe water, and by doing so he observed many things in India. Children, he has written, and the things that he had written in his books is given here in the bold lines. Okay, the people here are very skilled at making ponds. Many my countrymen would be surprised to see them. They pile up huge rocks and join them with iron rods to build chabutras, raised platforms all around the lake. Between these, there are rows of long staircases going up and down. The steps for going up and coming down are separate, so there is less crowding. You can see these things, the things which are written here, are very clear. It means that the people of India are very skilled in making ponds, and the countrymen, it means that the men of Uzbekistan will be surprised if they see these ponds. Okay, they pile up huge rocks and join them with iron rods to build chabutras. And chabutras were made around the lake or pond to celebrate their festivals, to organize different functions, as well as studying also. And Tulsi Das is a famous poet. He has written the Ramcharitmanas on the bank of the river Ganga in Varanasi, and that ghat is known as Assi Ghat. Assi Ghat. There you can see a lot of staircases to go up and come up. Okay, so these are the my culture of India, to make the ghat, to make the lake, to make the pond, and to keep safe them. Okay, so, and you have seen under the think and find out, and I have told you all the answer. Okay, now we come to the next point, drop by drop. Children, you have seen Jaisalmer. If you have not seen Jaisalmer, then you can see the Jaisalmer in this picture. Okay, in this picture here, this is the Rajasthan. Okay, now you can see this is the Rajasthan, and this is the Jaisalmer. This is the Jaisalmer where you are seeing Jaisalmer nearby the border of Pakistan. Yukur and Jaisalmer. Jaisalmer, there is a round circle which indicates you the Jaisalmer. Jaisalmer and Barmer are situated in the desert of India. Okay, desert of India. And the desert of India, you can see in this picture that
The violet color of this indicates that ये वायलेट कलर ये जो दिख रहा है वायलेट कलर में, ये जो तुम्हें दिख रहा है ये क्या है, ये तुम्हारा ये डेजर्ट है. दिस इज़ द डेजर्ट ऑफ इंडिया नोन एज थार इट इज़ लोकेटेड इन इंडिया. और देखो ये जो दिख रहा है ये तुम्हारा बाउंड्री दिख रहा है, ये राजस्थान का दिख रहा है. इसी राजस्थान के अंदर में हमारा ये है डेजर्ट है, राजस्थान थार है, और यहाँ पर पानी की कमी होती है. तो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ राजस्थान. सो नाउ कम टू द पॉइंट ड्रॉप बाय ड्रॉप. Besides Jaisalmer, many places in Rajasthan get very little rainfall. जैसलमेर के साथ साथ और भी बहुत सारे जगह हैं राजस्थान में जिससे जहाँ पर पानी बहुत कम वहाँ मिलता है. Here it rains for only 10 to 12 days in the entire year, sometimes not even that much. It means that there are only 12 days in which you can get the water in Rajasthan. Sometimes there is the lack of water in 12 days also. In these 12 days also, there is a lack of rain. So they cannot get water much in 12 days also. But it is the average time. It is the average time calculated by the experts that 12 days out of 365 days in a year they get the rainfall. Okay, the rivers here do not have water in them all around the year. It means that like Ganga Yamuna, they have not, the rivers in Rajasthan have not the water all around the year. But in the Ganga and Yamuna, they both of these rivers, Ganga and Yamuna, have all around the water. साल भर पानी रहता है. And yet most of the villages in these areas did not have a shortage of water. फिर भी बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पर पानी की कमी नहीं होती है. क्यों नहीं कमी होती है? देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ वाटर बिकॉज ड्यू टू लैक ऑफ वाटर इन द रिवर्स. मतलब नदियों में पानी की कमी होती है फिर भी वहाँ पानी की कमी नहीं होती. पीपल न्यू दैट एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर वाज प्रीशियस. क्योंकि लोग जानते हैं कि बूंद बूंद पानी की अहमियत है, बूंद बूंद पानी की कीमत है, वो हमारे लिए बहुमूल्य है. लेक्स एंड जोहर्ड्स वे आर मेड टू कलेक्ट दिस प्रीशियस ड्रॉप्स ऑफ वाटर. है ना, यहाँ तो क्या कर रहा है, लेक्स और जोहर जो है बनाए जाते हैं. क्यों बनाए जाते हैं? तो इन पानी की बूंदों को जमा करने के लिए. वाटर वाज एवरीवन्स नीड. तुम सोच सकते हो कि पानी सबकी ज़रूरत होती है. पानी सबकी ज़रूरत होती है. बिना पानी के हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते. बिना पानी के हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं. बिना पानी के हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं. क्यों नहीं भाई? तो हम बिना पानी ही हमारा जीवन है ना. Water is the base of life. Water is the life. We can say water is the life. We always say water is life. पानी ही जीवन है. पानी जब जीवन है तो सबकी ज़रूरत है उसमें. और बिना पानी पिए हम लोग जीवन जी भी नहीं सकते. नहाना है तो भी पानी की ज़रूरत है, खाना है तो भी पानी की ज़रूरत है, हम लोग टॉयलेट भी जाते हैं तो भी पानी की ज़रूरत है ना. हमें साफ़ सुथरे रहने के लिए बिना पानी की आवश्यकता के बिना हम लोग साफ़ सुथरे नहीं रह सकते. बिना पानी के हम लोग साफ़ सुथरे नहीं रह सकते. वन एंड ऑल केम टुगेदर इन दिस वर्क. ऐसा नहीं है कि पानी बचाने में सिर्फ एक ही आदमी आता है. बहुत सभी गांव लोग वहाँ पर सहायता करते. बी इट अ बिजनेसमैन और लेबरर. चाहे तुम बिजनेसमैन रहो, व्यवसाय करने वाले रहो, चाहे तुम श्रमिक रहो, तुम दोनों ही तरह के लोग वहाँ पर पानी जमा करने में सहायता करते हैं. पानी को शुद्ध करने में सहायता करते हैं, पानी को रखने में सहायता करते हैं. सम वाटर फ्रॉम द लेक्स सोक्ड इनटू द ग्राउंड एंड रीच द बेल्स. कह रहा है कि कुछ जो है झीलों के पानी हैं जिसको ज़मीन उसको सूख जाती है, यानी धरती उसको सूख जाती है
और कहाँ चले जाते हैं तो बेल्स कुएं में चले जाते हैं। बावड़ीज, स्टेप बेल देखो, दिस इज द पिक्चर ऑफ अ स्टेप बेल। स्टेप बेल मतलब जिसमें अंदर जाने के लिए रास्ते बने हुए हैं, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। दिस इज द टाइप ऑफ स्टेप बेल इन विच यू कैन गो इनसाइड टू कलेक्ट द वाटर, है ना। तो बावड़ीज इसको बोलते हैं। बावड़ीज बहुत सारे बावड़ीज हैं, दिल्ली में बने हुए हैं, दिल्ली में भी बने हुए हैं बावड़ीज। और ये तो राजस्थान है, राजस्थान में हर जगह देखोगे तो कहीं बड़े बड़े पुराने महलों में स्टेप बेल बने होते थे, बावड़ीज बने होते थे। वो ऊंचाई पे भी बने रहते हैं क्योंकि वो उसमें रेन वाटर कलेक्ट किए जाते हैं। रेन वाटर वेयर वाज कलेक्टेड इन स्टेप बेल्स, बावड़ीज, है ना, टू बी यूज्ड फॉर द डिफरेंट पर्पस। द सॉइल ऑफ द एरिया ऑल्सो बिकेम वेट एंड फर्टाइल। इससे क्या होता है कि ये आसपास का जो एरिया है वो भीग भी जाता है और उपजाऊ भी हो जाती है। एवरी हाउस हैड अ सिस्टम टू कलेक्ट द रेन वाटर। हर एक जो घर है उसे पानी कलेक्ट करने का उसका एक सिस्टम होता है। देखो एक पिक्चर है यहाँ पर दिया हुआ, दिस इज़ द टाइप ऑफ टू कलेक्ट द वाटर, है ना। ये इसको बोलते हैं वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं। वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं क्या, मतलब पानी को अपने घर के आसपास जमा करना। देखो छत के ऊपर से एक पाइप नीचे जा रही है, ये वाली पाइप नीचे जा रही है ना, जा रही है ना। तो ये पाइप नीचे जा रही है, इसी पाइप से ये नीचे जा रही है। इस पाइप से नीचे जाने के बाद देखो ये पाइप नीचे जा रहा है, नीचे पानी जमा हो रहा है। फिर लेडीज़ क्या कर रही है कि ऊपर के छत में एक छोटा सा होल कर देगा, उससे बाल्टी डाल रही है और पानी निकाल रही है। दिस इज़ द टाइप ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग इन विच यू कैन स्टोर द रेन वाटर, ओके। तो हाउ डू यू थिंक द रेन वाटर दैट फॉल्स ऑन द रूफ विल रीच द अंडरग्राउंड टैंक, ड्रा द पाथ। देखो ऊपर में पाइप बना हुआ है, मैंने बताया ही अभी। हैव यू एवर सीन अ स्टेप बेल, ये देखो पास में जो बना हुआ है स्टेप बेल यानी बावड़ी जिसको बोलते हैं। लुक एट द पिक्चर, कैन यू इमेजिन बाय लुकिंग एट द पिक्चर दैट द स्टेप्स गो डाउन सेवरल स्टोरीज डीप। मतलब क्या बोलते हैं, कितना तल्ला नीचे है। देखो पिक्चर में दिखा रहा है 1 2 3 4 5 तल्ला नीचे पानी है। तो ये जैसे जैसे मान लिया जाए ज़्यादा पानी हो जाता है तो ऊपर की ओर पानी आता जाता है, तो ऊपर से पानी निकाल लोगे। अगर पानी सूखता जाएगा तो फिर नीचे जाकर पानी निकाल लेंगे। लेकिन जाने और आने में आसानी है, हाँ। उसको अगर पानी को एक बार घड़े में भर कर ऊपर लाओगे तो थोड़ी मेहनत तो करनी ही होगी, भारी तो उठाना पड़ेगा। लेकिन जाने आने का रास्ता क्लियर होने से, साफ सीधा होने से ज़्यादा कठिनाई नहीं होती है। लोग तो कोसों दूर से, है ना, इवन यू हैव टू वॉक 1 mile or 2 miles to collect the drinking water in राजस्थान। तो यहाँ पर तो बावड़ीज बना हुआ था, इसमें कम मेहनत है। दैट स्टेप्स गो several stories deep. Instead of drawing the water up from the well, the people could go down the steps, है ना। बाल्टी से पानी खींचने के बजाय लोगों को नीचे जाना होता है और रीच द वाटर, पानी पहुँचो। दिस इज़ वाई दे आर कॉल्ड स्टेप वेल्स। यही कारण है कि उसको बोलते हैं स्टेप बेल्स, है ना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये है हमारा, अब हम आते हैं नीचे, ये अगले वाले पेज पे। तो लॉन्ग एगो पीपल यूज टू मेक लॉन्ग जर्नीज विद देयर कारवान्स ऑफ एनिमल्स एंड गुड्स, है ना। बहुत पहले लोग यूज क्या करते थे, दूर दूर यात्रा करने में, कहीं जाने में कारवां बनाते थे। एंड द कारवान्स मेड अप ऑफ एनिमल्स एंड गुड्स, है ना। द गुड्स were carried by the animals, and animals are used in carrying the goods, and animals were sent to other places with the men and women. People felt it was a good thing to give water to thirsty travelers. लोगों ने महसूस किया कि ये अच्छी चीज़ है कि, है ना, प्यासे लोगों को पानी पिलाना। प्यासे लोगों को पानी पिलाने का काम बहुत पुण्य का कार्य माना जाता है ना। इन इंडियन कल्चर पीपल हैव प्राउड टू सप्लाई द वाटर टू थर्स्टी ट्रेवलर्स, यानी दस दे बिल्ट मैनी ब्यूटीफुल स्टेप बेल्स, है ना। इस प्रकार
उन्होंने अच्छे अच्छे स्टेप बेल्स बनाए, बहुत सुंदर सुंदर। अब देखो इसमें 3 सवाल हैं, है ना, इतना तुम लोगों ने समझ लिया। एंड नाउ वी हैव टू डिस्कस द 3 क्वेश्चंस हेयर। हैव यू एवर फेस्ड अ शॉर्टेज ऑफ वाटर इन योर एरिया? If yes, then what was the reason for it? Talk to your grandmother or any elderly person. Find out when they were of your age. है ना, तो तुम्हें ये इसके बारे में अपने ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर से तुम्हें पता करना है, या अपने तुम्हारे घर में जो सबसे बड़े हैं उनसे पता करो, और पता करके तुम इसका आंसर हमें बाद में व्हाट्सएप पे वीडियो बना करके या फिर ऑडियो क्लिप बना करके भेज सकते हो। फ्रॉम वेयर डिड दे गेट वाटर फ्रॉम फॉर द हाउस? हाँ, तुम अपने लिए पानी, अपने घर में पानी कहाँ से लाते हो? हैज़ देयर बीन ए चेंज नाउ? पहले जैसे लाते थे क्या अब उसमें चेंज है, बदलाव आया है? ये भी तुम्हें आंसर देना है, भेजना है। व्हाट काइंड ऑफ वाटर अरेंजमेंट्स वेयर मेड फॉर ट्रेवलर्स, फॉर एग्जाम्पल प्याऊ, मशक और एनी अदर? नाउ व्हाट डू पीपल डू अबाउट वाटर व्हेन दे ट्रेवल? है ना, अब तुम्हें कहाँ पूछ रहा है इसमें क्या कि पहले ट्रेवलर्स के लिए प्याऊ बनाया जाता था। प्याऊ मतलब होता क्या था कि बड़ा बड़ा घड़ा रख दिया, उसके बगल में उसके बगल में एक ग्लास या उससे निकालने वाला एक ये होता था, स्टील का बना होता था, उससे वो पानी निकाल कर पीते थे। मशक होता था लेदर बैग। लेदर बैग्स आर यूज टू कलेक्ट द वाटर एंड दे स्प्रिंकल द वाटर ऑन टू द रोड, है ना, जहाँ पानी सड़कों पर भी छीटे जाते थे। और मशक लेदर बैग पोर्टेबल, लेदर बैग जो होता था पोर्टेबल। ओके, सो वाटर इज पोर्टेड टू अनदर प्लेस बाय विद द हेल्प ऑफ मशक और बाय कलेक्टिंग इन मशक और एनी अदर। नाउ व्हाट डू पीपल डू अबाउट वाटर व्हेन दे ट्रेवल? आज के लोग क्या करते हैं भाई, कैसे जाते हैं अपने, जब यात्रा करते हैं तो पानी कैसे लेके जाते हैं? तो आज के लोग जो जाते हैं वो पानी लेने के लिए कैसे जाते हैं, तो उसके बारे में तो ये सोचना है कि आजकल तुम लोग आते हो स्कूल तो पानी कैसे लेके आते हो, जब तुम लोग अपने विद फैमिली कहीं पर जाते हो तो तुम पानी कैसे लेकर जाते हो। हाँ, तो ये सब चीज़ें, ये तीनों का आंसर तुम्हें ऑडियो क्लिप में रिकॉर्ड करके मेरे पास भेजना है, ताकि मैं देखूं कि हाँ तुम कितने अच्छे तरीके से इसको समझे हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Rest of the things will be taught in the next class, or you can see in the next video. So try to like on the YouTube as well as on other media my video. Okay, thank you.